welcome to this video. In this video, I'll teach you how to solve series questions. Before solving series questions, some basic things you have to keep in mind. Now let us start. First, you have to check whether series contain square or cube. For example, the series will contain numbers like 1, 4, then 9, 16. Then the next term will be of, it is 1 square, 2 square, 3 square, then 4 square. Then the next term will be of 5 square, that is 25. Or cube, for example, 1, 8, 27, then 64. And what we have to find the next term. It is 1 cube, 2 cube, 3 cube, 4 cube. Then the next term will be of 5 cube, that is 125. If the series does not contain square or cube, the next you can check same difference. That is, series will contain same difference. Numbers will contain same difference. Or you can check for prime number difference. For example, you can see it is 1, 3, 5, 7. We have to find the next term. As you can see, the difference is of 2, 2, 2. Obviously, the next term will be of 7 plus 2, that is 9. If the series does not contain same difference, and it contains like 1, 4, 9, and we have to find the next term. The difference is of 3. The difference is of 5. Then you can see 9 plus 7, as 7 is the next prime number after 5. So the answer will be 16. Now let us solve some questions. So here is the first question. Now the series contain 39, 19, 58, 77, 135. As you first will identify, is it a square or cube? As you can see, 39 is neither a square nor a cube. So we'll have to try the second method. But the difference, as you can see here, the difference is minus 20, then plus 39, then. So I don't think the difference works here. But you can see here there is one different sequence. For example, you can see 13 plus 19, that is 58. Then 58 plus 19, that is 77. Yes, we got bingo. Then 77 plus 58 will get 135. Similarly, 135 plus 77, which is 212. So the right answer is 212. Now let us solve second question. Now we'll check by square. Is it a square of some number? 4, I think so, it is of 2 square. Then 25, 5 square, right? 2 स्क्वायर, फिर ये आएगा 5 का स्क्वायर, फिर ये आएगा 11 का स्क्वायर. देन वी हैव टू फाइंड दिस टर्म. ये आएगा 23 का स्क्वायर और ये आएगा 31 का स्क्वायर, राइट? सो यहाँ पे स्क्वायर है बट सीक्वेंशियली इट इज़ नॉट अ स्क्वायर. तो अपने को यहाँ पे डिफरेंस कितना है वो देखना पड़ेगा. नाउ यू कैन सी 2, 5, 11. यहाँ पे दिस आर ऑल प्राइम नंबर्स, राइट? तो 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? देन इट इज़ 3. देन 5 के बाद कौन सा नंबर होता है? इट इज़ 7, राइट? तो 11 के बाद कौन सा नंबर रहेगा? 13. बट यहाँ पे हर एक नंबर छोड़ के दूसरे नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है. तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? तो 17. तो यहाँ पे क्वेश्चन होगा 17 का स्क्वायर. फिर लेट अस कंटिन्यू दिस सीरीज. 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? देन इट इज़ 19. तो वी हैव टू एक्सक्लूड इट. फिर 19 के बाद 23 आता है, तो 23 का स्क्वायर यहाँ पे दिया है. फिर बाद में 23 के बाद 29 आता है, तो वी हैव टू नॉट कंसिडर इट. फिर 29 के बाद 31. येस, 31 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है. सो द आंसर इज 17 स्क्वायर विच इज 289. ओके, नाउ लेट अस सॉल्व थर्ड क्वेश्चन.
सो यहाँ पे फर्स्ट विल चेक ये स्क्वायर है क्या. सो 7 इज अ स्क्वायर. नो, 7 इज नॉट स्क्वायर. देन विल चेक द डिफरेंस. सो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 9. देन द डिफरेंस इज ऑफ 24. देन द डिफरेंस इज ऑफ 44. एज यू कैन सी डिफरेंस 9 और 24 के बीच का डिफरेंस होता है 15. इधर डिफरेंस इज ऑफ 20 एंड यू कैन कैलकुलेट इधर डिफरेंस कितना होगा 5. सो नाउ यू कैन सी इफ वी कैलकुलेट 5. सो कॉमन डिफरेंस अगर 5 होगा तो यहाँ पे 25 होगा और 24 प्लस 25 इज इक्वल टू 69. तो 84 प्लस 69 इज इक्वल टू 153. इज इट गिवन? येस, इट इज़ गिवन. सो लेट अस कंटिन्यू. अगर यहाँ पे 153 है और यहाँ पे 252 है तो डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस इज ऑफ 99, राइट. देन वी कैन सी 69 और 99 का इधर दोनों का डिफरेंस इज 30. तो यू कैन सी इधर डिफरेंस भी 5 है. येस, द क्वेश्चन आर आंसर इज राइट. सो इट वॉज लिटिल डिफरेंस अंडर डिफरेंस. सो यू हैव टू take this thing into consideration. Now let us solve next question. As you can see first it is not a square, not a cube. अभी आप डिफरेंस चेक करते हैं इसका. इधर डिफरेंस कितना होगा 1. इधर डिफरेंस इज 24. यहाँ पे डिफरेंस कितना है? यहाँ पे 5 का डिफरेंस है. तो आई थिंक ये तो कुछ अलग ही सीरीज है. तो थिंक व्हाट कैन यहाँ पे इट इज़ अ ट्रिकी सीरीज. सो अगर अपने को कुछ भी सॉल्व बाय गिवन बेसिक स्टेप्स वी आर नॉट एबल टू सॉल्व सम सीरीज, देन यू हैव टू कंसिडर दिस थिंग इन माइंड. अभी देखो 11. सो फर्स्ट वी हैव टू टेक दिस नंबर. तो 11 इंटू 1 कितना होगा 12. ओके, अभी 12 इंटू 3 36, राइट. तो 12 इंटू 3 36. sorry I made a mistake. It is like it is 12. 11 plus 1 is 12, right. फिर बाद में यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन होता है इस सीरीज इस टाइप में. फिर बाद में 36 इफ यू टेक देन अगर फिर से प्लस करना है तो प्लस कितना होगा 5 होगा. बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस 1 3 5 मतलब दिस आर ऑल और सीरीज. तो कितना होगा 41. अभी वी हैव टू फाइंड द नेक्स्ट टर्म. तो पहले एडिशन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर से एडिशन आएगा, अभी फिर से मल्टीप्लिकेशन आएगा. अभी कौन सा नंबर आएगा? देन द नेक्स्ट नंबर विल बी 7. तो द आंसर इज 287. नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट लास्ट नंबर. 287 प्लस 9. That is 296. Yes, we got this right. So you have to, this was little tricky question. तो ऐसे tricky question solve करते time you have to take this series. अगर कुछ भी solve नहीं हो रहा तो apply this method. So the answer is 287. Now let us solve next question. Now first is it a cube? No, it is not a cube. अभी इसको देखेंगे. सो पहले जो मेथड सॉल्व की उसी से लेट अस ट्राई. 3 इंटू लेट अस सी 3 इंटू 3 प्लस 3 दैट इज 9 प्लस 3 विच इज 12. एज यू कैन सी आई एम अप्लाइंग दिस मेथड बिकॉज अगर डिफरेंस देखा तो डिफरेंस इज नॉट सेम. सो आई टोल्ड यू अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं बचता तो यू हैव टू ट्राई दिस मेथड. फिर बाद में यू कैन सी 12 इंटू लेट अस 4 कितना आएगा 48. सो प्लस 4 कितना होगा 52. नाउ लेट अस सी 52 इंटू 3 प्लस 3 6 5 3 are 15 प्लस 3 159. नाउ 159 इंटू 4 दैट इज 23. 636 plus 4 that is 640. Yes, now we can find this अपना sequence follow हो रहा है. Now you can see 640 into
थ्री, बिकॉज देखो प्लस यहाँ पे वी हैव डन +3 देन प्लस इंटू 3 +3. नाउ यू कैन सी +4 इंटू 4 +4, फिर से इंटू 3 +3. नाउ देखो इंटू कितना 3 होता है 6 920 +4 you have to do, +3 you have to do, sorry, so 923, so 1923. I know this questions are little tricky, but by various practice you will be able to solve it. Now let us do this. अगर देखो is it a cube or is it a square? तो आई थिंक स्क्वायर तो किसी का नहीं है, बट क्यूब अगर देखें तो 125 216 ऐसा क्यूब होता है. सो आई टोल्ड यू, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 6 का क्यूब कितना होता है 216, 5 का क्यूब कितना होता है 125. अगर यहाँ पे 1 प्लस 1 किया तो यू विल गेट 2126, यहाँ पे +1 किया तो 217. सिमिलरली ये किसका क्यूब है, तो इट इज़ क्यूब ऑफ 7 विच इज़ 343, +1 विल गिव यू 344. अभी इस नेक्स्ट टर्म विल बी 8 का क्यूब, दैट इज़ 512 +1, दैट इज़ 513. So the answer is 513. So it was very easy questions. I hope you got it. Now let us check the next question. So it is a little tricky question. जो पहले हम दोनों दो क्वेश्चन सॉल्व किए. Similarly this is little similar type. So you can see it is not a square, it is not a cube. अगर डिफरेंस भी देखें तो 541, तो डिफरेंस कितना आएगा 39, तो नहीं. बट यू कैन सी ये क्वेश्चन इज लाइक 5 इंटू मतलब इट इज़ 8 टाइम्स +1 समथिंग. ये भी इसका 6 टाइम्स समथिंग है. नाउ यू कैन सी इसका टिपिकल, यू जस्ट नोट इट डाउन. यू कैन सी 5 इंटू 6 दैट इज़ 30 प्लस यू हैव टू डू 11 दैट इज़ 41. अगर 41 का 6 किया तो कितना आएगा 246 प्लस तो कितना, यू हैव टू ऐड 12, तो 258. देन द नेक्स्ट टर्म विल बी 258 इंटू 6 विच इज़ 1548 प्लस उसमें 13 ऐड किया बिकॉज देखो 11 12 13, तो आंसर इज़ 1561. येस, तो सीरीज इज़ राइट. Now you can see 1561 into 6 that is 9366 plus you have to add 13 के बाद 14 आता है तो 9380. So the answer is 9380. Hope you got it. I know it is a little tricky but solve करते by practice you will be able to solve it. Now let us solve this next question. So this question is also of similar type as you can see. So यहाँ पे देखो into 2 किया +1 किया, इंटू 2 किया +2 किया, राइट. देखो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 + 1 दैट इज़ 41. अभी 41 इंटू 2 कितना होता है 84, 82 प्लस कितना 2 किया तो 84. येस, देखो अभी 2 करते +1 किया तो यू गॉट द नेक्स्ट टर्म, फिर +2 की करने से सेकेंड टर्म भी मिले. नाउ लेट अस चेक इफ़ यू आर राइट. तो 84 इंटू 2 किया कितना हुआ 168, so you have to add 1 2 3, 171. Then the next term will be 340, sorry, then the next term will be 171 into 2 that is 342. Then you have to add 3 के बाद 4. yes, our series is right. Now 346 into 2 कितना हुआ 692, you have to add 5 तो 697. yes, the answer is right. So फॉर दिस ट्रिकी सीरीज आप सॉल्व करते रहो तो यू विल गेट इट थ्रू इट. नाउ लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यू कैन सी अगर मतलब डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो लेट अस चेक डिफरेंस बिकॉज ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है. नाउ यू कैन सी पहले अब अगर हम डिफरेंस देखें तो 0 आता है, डिफरेंस 2 आता है. अरे ये तो इसका इंटू 3 हुआ, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. देखो अभी तो 18, so we can do it is like
एक सेकेंड ना, 18 18 इंटू 1 दैट इज 18। अभी देखो 18 प्लस 2, तो आई टोल्ड यू ना इट इज़ 20। तो किसी सीरीज़ में क्या होता है, यू हैव टू पहले प्लस इंटू होगा, फिर बाद में प्लस होगा, फिर बाद में इंटू होगा या प्लस होगा। सो यू हैव टू आइडेंटिफाई। अभी देखो 20 इंटू 3 किया तो यस। अभी 60 प्लस 4 किया, कितना हुआ? 60 प्लस 4 64। Now you can see 64 into 5 that is 320. So is it the, yes, the series is right. Now let us solve some different, I know now let us solve this question. अभी the series is in decreasing order. ये किसी का स्क्वायर है? नो, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर। नाउ लेट अस चेक द डिफरेंस। यहाँ पे कितना होता है? -17। यस, यहाँ पे कितना होगा फिर? -19। यहाँ पे माइनस, नो, देन यू हैव टू, नाउ लेट अस सी। ये अगर नाउ यू सी, ये तो स्क्वायर नहीं है किसी का, बट यू कैन सी अगर स्क्वायर -1 होगा या स्क्वायर +1 होगा, तो लेट अस चेक। देख 99 देन द स्क्वायर विच इज़, जो 99 के पास है तो दैट इज़ 100, मतलब 100 इज ऑफ 10 स्क्वायर, राइट। तो अगर -1 किया तो 99 आता है, राइट। अगर 82 देखा तो 81, इज इट नियर टू 81? येस, इट इज़ नियर टू 81। नाउ यू कैन सी 9 का स्क्वायर +1 आएगा 82। नाउ 63 किसके नज़दीक है? 64। नाउ यू कैन सी 8 square -1 that is 63, right? Now you can see अगर 50 which is closest 7 the square +1 that is yes। अभी देखो 10 9 8 7, अभी नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ 6 का स्क्वायर। अभी -1 +1 -1 +1, फिर बाद में -1 दैट इज 36 -1 दैट इज 35। येस, नाउ वी हैव टू फाइंड द लास्ट टर्म दैट इज 6 के बाद कौन सा होगा? 5 का स्क्वायर +1 दैट इज 25 +1 विच इज 26। इज द आंसर गिवन? येस, द आंसर इज गिवन। सो यू हैव टू चेक केयरफुली। अगर स्क्वायर भी नहीं दिया तो स्क्वायर के आसपास कुछ है कि नहीं, यू हैव टू चेक। नाउ लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट टर्म। नाउ यू कैन सी 1 2 6, तो डिफरेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा बिकॉज यू कैन सी द नंबर्स आर इन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर स्क्वायर होगा तो नो, स्क्वायर अगर स्क्वायर के पास नहीं, फिर भी नाउ यू कैन सी किसी का मल्टीप्लिकेशन है, अगर देखेंगे तो इंटू 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6। नाउ लेट अस चेक 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, 2 3 का देन 6, 6 इंटू 4 दैट इज़ 24। येस, इट इज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर। नाउ 24 इंटू 4 के बाद कौन सा टर्म आता है? 120, फिर बाद में 120 इंटू 6 दैट इज 720। तो दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप यू गॉट इट। नाउ लेट अस चेक द नेक्स्ट टर्म। 31 17 48 65। सो लेट अस, तो किसी का डिफरेंस है क्या? नो, डिफरेंस तो पहले तो डिक्रीज हो रही है, फिर बाद में टर्म इंक्रीज हो रही है। अगर एडिशन है क्या किसी का? अगर देखो 31 + 17 दैट इज़ 48, फिर बाद में 48 + 17 65। येस, वी गॉट इट। नाउ यू कैन सी अगर दो टर्म का एडिशन हो रहा है, फिर बाद में द नेक्स्ट टर्म इज एडिशन ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अभी नेक्स्ट का देखो 65 + 48 किया तो 113, सो तो अपना सीक्वेंस राइट है। नाउ नेक्स्ट यू कैन सी 113 + 65 किया तो कितना आएगा? 178। येस, वी गॉट इट। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिक टाइप ऑफ सीरीज, यू हैव टू चेक इट कि थर्ड टर्म इज इट एडिशन ऑफ पहले दो टर्म्स का एडिशन है कि नहीं, फिर यू हैव टू चेक इट। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो नाउ यू कैन सी फर्स्ट द term is getting half, so 20 is half of 20 is twice of 10, so if you see it is, अगर into 0.5 किया तो you get 10, तो 10 into 10 1, तो 10 into 1.5 15 into 2, फिर बाद में the next term will be 30 into 2.5, as you can see the difference is of 0.5, so the next term will be 0.5 that is
75. सो इट वॉज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ लेट अस चेक डिफरेंस. डिफरेंस करें या इसका मल्टीप्लिकेशन करें? व्हाट डू यू थिंक? सो लेट अस चेक पहले इसका डिफरेंस. डिफरेंस इज कितना? 1. देन आई थिंक सो इट इज़ 8. फिर बाद में कितना? 27. ओ तो डिड यू रियलाइज कि ये किसी का क्यूब है? सो यू कैन सी ये 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब. येस. देन द नेक्स्ट टर्म विल बी ऑफ 4 क्यूब. कितना होगा? 64 + 60, दैट इज 128. 124 सॉरी. तो द आंसर इज 124. नाउ लेट अस चेक कि नेक्स्ट क्यूब भी विल कितना होगा? 5 का क्यूब होगा. तो 124 + 125 कितना होता है? 249. तो yes, so this sequence is difference of cubes. Now let us do last question of this video. So I hope ये तो बहुत easy question है. I hope you got it. So you have to find the last term. So did you realize it is very easy questions? Is it a cube of some term? नहीं. Is it is it a square of any term? No. Is it a cube of some term? Yes, it is a cube of some term. अभी देखो, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये it is of 7 का क्यूब, then this is of 9 का क्यूब. तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ हमें डिफरेंस का क्यूब मतलब ये 3 का क्यूब है. तो दिस आर ऑल क्यूब्स ऑफ ऑड नंबर्स. तो द नेक्स्ट टर्म विल बी क्यूब ऑफ 11 क्यूब. 11 का क्यूब कितना होता है? 1331. I hope you like this video. If you like this video, please do like, share and subscribe. And if you have any doubt regarding any questions, please do mention it in the comments. Thank you.